यहाँ पे देखिए 18 थॉमस हार्डी 1840 से 1928 नॉवलिस्ट और पोएट। ठीक है, ये पैदा हुआ 1840 में और इसकी डेथ हुई 1928 में। हार्डी was a Victorian realist influenced by romantics and highly critical of what he considered to be declining society. He was particularly focused on rural society and his novels explores tragic characters struggling against their social circumstances and passion. और उसके जो नॉवेल्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं ट्रेजिक कैरेक्टर्स को जो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट देयर सोशल सर्कमस्टांसेस और पैशंस को। हार्डी वाज बोर्न इन डॉर्सेट, हिज फादर वाज स्टोन stone mason. His mother was well read and educated him until he went to school from the ages of 8 to 16. He could not afford a university education, so trained as an architect. He moved to London but felt socially inferior and actually aware of class division. He became interested in social reform, including the plight of women in an unequal society. He was nominated for Nobel Prize in Literature. ठीक है, डॉर्सेट में पैदा हुआ, उसकी एजुकेशन बड़ी अच्छी हुई और फिर वो लंदन चला गया। फिर वहाँ पे उसने फील किया सोसाइटी को इंफीरियर और एक्यूटली अवेयर ऑफ क्लास डिविजन्स। ठीक है, और क्लास डिविजन्स में फॉल हुई थी वो सोसाइटी। ही बिकेम इंटरेस्टेड इन सोशल रिफॉर्म। अब वो जो है सोशल रिफॉर्म किसे कहते हैं, सोसाइटी को रिफॉर्म करना उसका मेन टारगेट था कि वो सोसाइटी को रिफॉर्म करे, इंक्लूडिंग द प्लाइट ऑफ वीमेन इन अनइक्वल सोसाइटी। और ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। फिर his first wife death affected him greatly, and although he remarried, he wrote poetry to cope with her death. When Hardy died, he stated he wished to be buried with his first wife. However, the executor of his will insisted he be buried at Poets' Corner. A compromise was reached. His hair was buried with his wife, his ashes in Westminster Abbey. ठीक है, ये जो है उसको पोइट्स के साथ में दफनाया गया, उसके हेयर जो है वो उसकी वाइफ के साथ दफनाए। अच्छा जी, हायर्स जो होते हैं यानी कि उसकी जो पीछे बचा कुचा जो भी था उसका। प्रोस्टिट्यूशन इन हार्डीज इंग्लैंड। अब यहाँ भी देखते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन हार्डीज इंग्लैंड में क्या था। Victorian England may seem very strict and moral on surface, but drug taking, violent crime, prostitution, adultery, and pornography all went on and only hidden under a more genteel surface. ठीक है, ये सारी चीजें हिडन थी अंडर अ मोर जेंटल सरफेस। It was usually accepted or even expected that men had sex outside marriage, but women who did this were called fallen women and constitute ruined. They were often shunned by polite society, banished from their families, or left without support, money, or connection. Opportunities, rights, and support for women were so limited that many poor women felt they had no option but to turn to prostitution to make enough money to live. However, there was not usually much sympathy or understanding for their circumstances. Prostitution was seen as a big problem not only as a nuisance in society but as a threat to morality. Although prostitution was not spoken about in polite society, and prostitutes and adulterers and otherwise fallen women were popular subjects for Victorian art and literature. This sort of art and literature after conveyed a message or lesson which aimed to reinforce Victorian values and warns against sexual temptation. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं कि हार्डी सेंटर्स टेस्ट इन एंड अराउंड डॉर्सेट। ठीक है, इसकी जो सेटिंग है वो डॉर्सेट में थी। एंड एग्रीकल्चरल रीजन, जो कि एक एग्रीकल्चरल रीजन था, which by the time that Hardy was writing had already undergone considerable economic and social change, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा socially और economical change हो रहा था। There was no longer a peasantry, but society structured by class relations and social mobility. The rural economy was dependent upon urban markets. Dorset, which was pastoral country, did especially well out of this, and by 1890s had just been through a long-term depression brought about by shifts in global economy. As a result of this depression, employment had declined drastically and wages had fallen. और इसी डिप्रेशन के तहत जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, वेजेस जो हैं वो बिल्कुल गिर गए, यानी कि जो लेबर क्लास है उसको वेजेस भी नहीं दिए जाते थे, स्पेशली इन साउथ एंड ईस्ट ऑफ इंग्लैंड वेयर arable farming predominated.
जहाँ पे फार्मिंग जो है वो प्रीडोमिनेट थी। ग्रॉस आउटपुट फेल इवन इन डॉर्सेट, ठीक है, ग्रॉस आउटपुट भी बिल्कुल फेल हो गया। डिस्पाइट इट्स स्पेशलाइजेशन इन डेयरी प्रोडक्शन एंड some tenant farmers in Dawson refused to bind themselves to anything longer than a 1 year lease। और यहाँ तक के कुछ टीनेंट फार्मर्स और क्योंकि ये इसके बावजूद कि ये लोग स्पेशलाइज थे डेयरी प्रोडक्शन में, लेकिन कुछ मजरों ने, फार्मर्स ने जो है डॉर्सेट में रिफ्यूज कर दिया कि वो अब इससे ज़्यादा बाउंड नहीं कर सकते अपने आप को इन feudals के साथ। Thousand had left the countryside in search of work and a series of education acts passed from 1870s onward adding to process of depopulation। ठीक है, फिर जो है सीरीज ऑफ एजुकेशन एक्ट जो है वो ताकि डीपॉपुलेट किया जाए। There were 18,000 agricultural laborers in Dorset in 1871 and only 12,500 by 1891। The Dorset agricultural laborer lived generally in appalling conditions। ठीक है, वो जो लेबर्स थे वो बहुत ही बैड कंडीशंस में रहते थे, some of worst in fact in country, while class relations were among the most embittered of time। और कंट्री में जो है वो जो क्लास रिलेशनशिप, क्लास रिलेशंस थे वो बहुत और भी ज़्यादा उस वक्त में जो है वो हुआ करते थे, मतलब बुरे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि ये है Bildungsroman, tradition of Bildungsroman, a novel dealing with education, maturity and development of a young protagonist, implicitly male। In 5 bullet point outline how Harry Potter conforms to conventions of a, मतलब किस तरीके से इसकी conventions जो हैं वो, और इसके अंदर मेल, मतलब ये इस तरह के वहाँ पे उस वक्त novels लिखे गए। लेकिन is Hardy saying that this Victorian realism of buildings from Roman is impossible for a female protagonist? ठीक है, एक female protagonist का फिर क्या किया जाए, ठीक है। यौनरा देखते हैं, given the stress on fate coupled with biological, देखिए वो सबसे ज्यादा fatalistic concept के ऊपर believe करता था। The stress on fate coupled with biological and sociological pressures that are placed on the character, the novel might be categorized as naturalist। Naturalism expresses a post-Darwinian view of life in which human beings are seen as fundamentally more than specialized animals। ठीक है, कि जिसमें इंसान नेचुरली बिहेव करता है, स्पेशलाइज्ड एनिमल्स के सब्जेक्ट टू नेचुरल फोर्सेस, वो सब्जेक्ट होता है टू नेचुरल फोर्सेस सच एज जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। Naturalists see novel as kind of experiment and claim a degree of scientific accuracy for their work। Typical subject matter is the miserable and poverty-stricken or those driven by animal appetites such as hunger or sexuality। Life is seen as a squalid and meaningless tragedy। इंसान नेचुरली बिहेव करता है, इंसान के अंदर जो है, और वो प्रोन टूवर्ड्स होता है नेचर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या इसके अंदर दिखाई गई कि इंसान के अंदर नेचुरली एक जानवर भी मौजूद है, अगर वो उसको लगाम नहीं देता तो वो जानवर बेकाबू हो जाता है। However, this is unworkable given the poetic description, mythical and philosophical element that are also found within Tess। Neither is Tess a realist novel। Realists aim to present things as they are। ठीक है, ये जो रियलिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, चीज़ों को वैसे बयान करते हैं जो असल में हकीकत में होती है। एंड इन द 19th century most realist novel consisted of a detailed representation of life and depiction of human nature as it really is। Realism, Hardy said, is not art, though the novel is easily paraphrased in some time explicitly descriptive, and though most of its foreshadows, discoveries, and turning points are tied up by the end, it does not have the happy ending of Victorian realist text। Instead, Lisa Lu steps into take Tess place by Claire side as Tess herself is hanged। ठीक है, उसकी जगह उसकी बहन ले लेती है। Tess is about isolation and separation, the condition of modernity। Hardy's realism simply becomes a way to chart as female building Roman, her joy, stoicism and humiliation। अब हार्डी की रियलिज्म जो है वो एक फीमेल बिल्डन रोमन पे जो है वो बताती है,
उसके बारे में, उसके जॉय में, उसके स्टोइसिज्म में और उसकी ह्यूमिलेशन के बारे में वो बताता है। अब यहाँ पे देखिए नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले वो यूज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड करता है। हिज नॉवेल्स आर सेट विद इन द सेमी फिक्टिशियस लैंडस्केप ऑफ वेसेक्स। सबसे पहली बात ये कि उसके जो नॉवेल्स हैं वो सेमी फिक्टिशियस लैंडस्केप ऑफ वेसेक्स में जो है वो हमें दिखाई देते हैं। The reader can easily identify the scenery and town description described in narrative located within the southwest of England. Mostly जो इसके scenes हैं वो साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड है, विच इनकॉर्पोरेट डॉर्सेट, जिसमें डॉर्सेट भी जो है वो है, एंड सराउंडिंग कंट्रीज। द स्पेसिफिक सेंस ऑफ प्लेस, ये जो कंट्रीज है ना, ये कंट्री साइड को कहा जा रहा है, विलेज लाइफ को कहा जा रहा है, मतलब अर्बन लाइफ को कहा जा रहा है, सॉरी रूरल लाइफ को, यानी कि गांव की जिंदगी को। द स्पेसिफिक सेंस ऑफ प्लेस डिटेल्ड इन हार्डिस फिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड अ रियलिस्टिक रूरल बैकग्राउंड। ठीक है, एक रूरल बैकग्राउंड को शो किया जा रहा है, बैकड्रॉप अगेंस्ट विच इज मैनी कैरेक्टर लिव आउट देयर लाइफ। एक रूरल बैकड्रॉप के रूरल जो विलेज लाइफ है उसका जवाल दिखाया गया है इसमें, विच हिज मैनी कैरेक्टर लिव आउट देयर लाइफ एंड स्ट्रगल अगेंस्ट देयर, कि वहाँ पे किस तरीके से कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी जिंदगियां गुजारते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं अपने circumstances के अगेंस्ट। In Hardy's fiction, the nature world is often described in great detail, rendering it more significant than a mere setting against which the narrative unfolds. Hardy established a reciprocal relationship between environment and character. ठीक है, अब वो जो है एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है बिटवीन एनवायरनमेंट और उसके कैरेक्टर पे, एक इंटरेक्शन है विच सर्व्स टू डेमोन्स्ट्रेट द चेंजिंग पोजीशन ऑफ ह्यूमंस इन पोस्ट डार्विन एंड विक्टोरियन period. Hardy's narrative voice depicts the natural world in the same way the appearance of the different individuals are described, and vice versa. And this technique removes the sense of authority from human hands, placing human within the natural world rather than ruling above it. अब यहाँ पे देखें कि दिखाया ये गया है कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, एक विक्टोरियन सोसाइटी है, और जब एक मर्द गलत करता है तो उसको गलत नहीं कहा जाता, लेकिन जब एक औरत के साथ अनहोनी हो जाती है, उसके साथ कोई जाति हो जाती है, तो उसको फिर उस सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। टेस्ट के साथ जो भी हुआ उसके उसके उसमें उसका कसूर नहीं था, उसमें उस सोसाइटी का, उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का कसूर था जिसमें वो फंस के रह जाती है। ठीक है, तो ये वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि उसने प्लेस किया ह्यूमन नेचर को विद इन द नेचुरल वर्ल्ड रादर देन रूलिंग अबव इट, कि वो किस तरीके से अथॉरिटी के अंडर और नेचर के अंडर सर्कमस्टांसेस में एक प्रोटैगनिस्ट जो है वो फंस के रह जाता है। फिर हार्डी पैगनिज्म, क्रिश्चियन टर्म्स फॉर रिलीजियस अदर देन देयर ऑन। ठीक है, पेगन्स जो होते हैं ये नो गॉड कॉन्सेप्ट को पे बिलीव करते हैं। ठीक है, ये जो कैलाश में रहते हैं ना, ये सारे पेगन्स होते हैं। ठीक है, एंड नेचर, वो आप देखते हैं मसाला चैनल पे फूड डायरीज, वो जो सिद्धवा है, क्या नाम है उसका, पूरा नाम मेरे जहन से निकल गया, वो पेगन है। ठीक है, और पेगन्स क्या करते हैं कि जब इनकी डेथ हो जाती है ना, पेगन्स की जब डेथ होती है, और कैलाश में आप जाए ना, वो फिर आपको बताएंगे कि वो क्या करते हैं, वो गॉडेस ऑफ अर्थ को पूछते हो। ठीक है, और जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो ये अपनी डेड बॉडीज को जो है छोड़ आते हैं, फॉरेस्ट में छोड़ आते हैं, कि ये गॉडेस ऑफ अर्थ ही इसको सूद करेगी, अगर तो ये नेक इंसान होगा तो इसको नेक रूहें ले जाएंगी और गॉडेस ऑफ अर्थ उसको सूद कर देगी, और अगर नहीं तो फिर वो गॉडेस ऑफ अर्थ इसको तबाह कर देगी। ठीक है, तो इसको चील कौवे वगैरह खा जाएंगे, तो वो उसको दफनाते नहीं है, बल्कि उसको वो फॉरेस्ट में गलने सड़ने के लिए छोड़ आते हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। इन एन essay detailing Hardy's use of paganism in Test of Duelist, Charlotte Bronica says that the part of reason for Hardy's incorporation of these pagan elements is because he believed that there is an innate, inescapable human need to make sense of universe in humanly understandable terms. Hardy uses nature and the ideas of paganism as a source of finding life meaning. ठीक है, वो जो है आइडिया ऑफ पेगनिज्म को अप्लाई करता है
ताकि वो लाइफ के मीनिंग को फाइंड आउट कर सके। बोनिका sees the combination of nature and pagans as an alternative belief system। pagans का belief basically nature पे होता है ना, ये लोग गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी को बलि देते हैं, गॉडेस ऑफ अर्थ को जो है बलि देते हैं, तो ये सारे पेगन्स होते हैं, नो गॉड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रीक्स या ग्रीक कॉन्सेप्ट से भी हम इसको ले सकते हैं, और ये पेगन्स जो होते हैं वो ये सारे मतलब इस तरीके से वो करते हैं। बोनिका सीज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड पेगन एज एन ऑल्टरनेटिव बिलीफ सिस्टम। She says at the heart of the country people paganism is the tendency to see congruence between two events and situation in their own lives and phenomena in the natural world। वो कहता है कि पेगनिज्म जो है वो एक टेंडेंसी है कि जो एक मिलाप है दो इवेंट्स का और सिचुएशंस इन देयर ऑन लाइफ, जो कि क्या है सिचुएशन उनकी अपनी लाइफ में, और फेनोमेना इन नेचुरल वर्ल्ड। और नेचुरल फेनोमेना है कि इंसान की फेट भी है। अच्छा जी, अब जो है कैरेक्टर्स और कोटेशन क्वेस्ट है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें एक कोट है, पुअर डार्लिंग टू सपोज माई सेल्फ द मोस्ट मिजरेबल बींग ऑन अर्थ इन द साइड, ओ सच मिजरी एज योर, शी exclaimed, her tears running down as she killed the bird tenderly। ये कुछ बेटा कोट्स हैं। डोंट यू रियली नो डिबरफील्ड दैट यू आर द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंशिएंट एंड knightly family of the D'Urbervilles, who derives the descent from Sir Pagan D'Urbervilles, that renowned knight who came from the Normandy with William Conqueror, as appeared by Battle Abbey Roll। Never heard it before, sir। ठीक है, यानी कि ये जो है बहुत ही एक अच्छी फैमिली से, बहुत नोबल फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये सारी कोर्स जो हैं वो उसकी नोबल फैमिली को शो कर रही हैं। और बाकी ये बेटा सारी कोर्स हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। हम मेन अपने लेसन की तरफ चलते हैं।